Hello friends. So now we'll study our next lecture on Junagadh integration into India. In the last lectures we have studied about Bhopal, Jodhpur and Travancore integration in India. Now Junagadh is a very peculiar princely state, as Junagadh is the princely state in which the Nawab actually signed the instrument of accession to join Pakistan. In Bhopal, you already know that Bhopal was in doubt. It wants to join Pakistan, but eventually it joins India. Travancore wants to remain independent. Similarly, Jodhpur wants to join Pakistan, but eventually joins India. But Junagadh is the only princely state which has joined actually Pakistan by means of signing the instrument of accession. So that is a very important fact, and you should know this fact, that only princely state Junagadh which eventually joins India, even after signing IOA, instrument of accession, with Pakistan. So yeah, that is a very important fact. So understanding the history of Junagadh actually. So Junagadh, as you know, that Junagadh is a princely state which lies in the heart of Gujarat. You can say this is Junagadh princely state. This one, Junagadh. So it lies in the Kathiawar Peninsula. ठीक है, जो ये रेन ऑफ कच्छ वाला एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया में जूनागढ़ लाई करता है, और इसको बोलते हैं काठियावाड़, पार्ट ऑफ काठियावाड़ पेनिनसुला, काठियावाड़ पेनिनसुला. ठीक है, पता होना चाहिए काठियावाड़ पेनिनसुला. So when India is getting independence in 1947, so as you already know that the lapse of paramountcy has been declared by the British over the princely state. So princely states have been given the option either to join India or Pakistan or to remain independent. So Junagadh, Nawab. So you have to understand, or you should remember the name of the Nawab of the Junagadh. His name is Nawab Mahabat Khan the Third. Mahabat Khan the Third. He is the Nawab, and Diwan is Shah Nawaz Bhutto. Shah Nawaz Bhutto is actually the grandfather of Benazir Bhutto. Was the grandfather of Benazir Bhutto. Benazir Bhutto जो erstwhile प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बेनजीर भुट्टो के दादाजी थे. सो नवाब महाबत खान जो थे, एक्चुअली इट इज़ दी शाहनवाज भुट्टो दीवान हु वांट्स टू ज्वाइन पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे. तो जब इंडिया आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो जूनागढ़ ने सोचा, जूनागढ़ के जो नवाब थे वो तो इतना इंक्लाइन नहीं थे पाकिस्तान के लिए, बट क्योंकि शाहनवाज भुट्टो हैज़ ए स्पेशल फ्रेंडशिप विद मोहम्मद अली जिन्ना, तो शाहनवाज भुट्टो हैज़ इवेंचुअली डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान. तो 15 अगस्त को ही हैज़ डिक्लेयर्ड, 15 अगस्त 1947 तक कुछ उन्होंने निर्णय नहीं लिया, एंड इवेंचुअली 15 अगस्त 1947 को दे हैव डिक्लेयर्ड टू ज्वाइन पाकिस्तान ज्वाइन करने का डिक्लेरेशन शाहनवाज भुट्टो ने डिक्लेयर कर दिया. अब क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा डिक्लेरेशन दे दिया तो एजिटेशन स्टार्ट हो गई उनकी अपनी प्रिंसली स्टेट में. क्यों हो गई? क्योंकि जूनागढ़ वॉज अ हिंदू मेजोरिटी प्रिंसली स्टेट, एंड एज पर जिन्नास टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी, उसके हिसाब से हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव इन दी सेम टेरिटरी में नहीं रह सकते. तो पाकिस्तान इज बेसिकली इज गेटिंग जनरेटेड ड्यू टू मुस्लिम मेजोरिटी और मुस्लिम country. So a Hindu majority province should not be a part of Pakistan. But
Jinnah has refuted this two-nation theory, which actually he has devised the two-nation theory. He has refuted, and he has convinced or Shahnawaz Bhutto, with the collusion of Shahnawaz Bhutto and Muhammad Ali Jinnah, Shahnawaz Bhutto has declared to join Pakistan on 15th of August 1947. तो क्या हुआ, एजिटेशन स्टार्ट हो गई प्रिंसली स्टेट में, और जूनागढ़ के एडजॉइनिंग, बिल्कुल चिपकी हुई एडजॉइनिंग प्रिंसली स्टेट कौन सी, मैंगरोल एंड बाबरियावाड़, मैंगरोल एंड बाबरियावाड़, मैंगरोल एंड बाबरियावाड़, इन दोनों ने इसको वो किया, अपोज किया, जूनागढ़ की पाकिस्तान ज्वाइन करने की थ्योरी को, या जूनागढ़ ने जो पाकिस्तान डिक्लेरेशन दी थी कि वी विल ज्वाइन पाकिस्तान, अपोज किया। मैंगरोल एंड बाबरियावाड़ ये एक्चुअली ये इस पे महाबत खान ही रूल करते थे इन प्रिंसली स्टेट्स पे भी, मैंगरोल एंड बाबरियावाड़ पे भी, एक्चुअली पार्ट ऑफ एक तरह से जूनागढ़ ही मान लीजिए। तो ये जो प्रिंसिपैलिटीज़ हैं पार्ट ऑफ जूनागढ़, दे हैव डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि विल नॉट ज्वाइन पाकिस्तान, विल ज्वाइन इंडिया। वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि दैट वी विल ज्वाइन इंडिया। सो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तो क्या हुआ, एजिटेशन चली रही थी जूनागढ़ में अगेंस्ट दी डिसीजन ऑफ दी नवाब एंड दीवान। तो क्या हुआ, जूनागढ़ के फोर्सेस ने, यानी कि महाबत खान की फोर्सेस ने मैंगरोल और बाबरियावाड़ पे अटैक कर दिया और उनको कब्जे में ले लिया, उनके रूलर्स को हटा दिया, और महाबत खान ने डायरेक्ट रूल, अपना कंट्रोल पूरा मैंगरोल और बाबरियावाड़ पे कर लिया और उनको पाकिस्तान में मिला लिया। अब क्या हुआ, मैंगरोल और बाबरियावाड़ भी पाकिस्तान में शामिल हो गए, जबकि ये हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस थे। अब क्या हुआ कि बहुत लार्ज स्केल पे एजिटेशन शुरू हो गई इन जूनागढ़, और उस एजिटेशन को दबाने के लिए महाबत खान जी ने पाकिस्तान से मदद मांगी अगस्त में, बट कोई हेल्प उनको पाकिस्तान से नहीं मिली, मोहम्मद अली जिन्ना से। फिर क्या हुआ, सितंबर में फाइनली पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड दी जूनागढ़ एक्सेशन इन पाकिस्तान, और साइन किया पाकिस्तान ने विद जूनागढ़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन सितंबर 1947। बट क्योंकि लार्ज स्केल एजिटेशन हो ही रही थी इन जूनागढ़, तो वहाँ पे एक लीडर थे समलदास गांधी। इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी इन जूनागढ़, आरजी हुकूमत। ये जो थी प्रोविजनल गवर्नमेंट, एक टेम्पररी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी कि वी विल रूल दी जूनागढ़, will not accept the accession of Junagadh in Pakistan. So it is the RG Hukumat which actually holds the government, the authority of the government, and it starts ruling the Junagadh area. तो एक प्रोविजनल, एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी गई जूनागढ़ के अंदर। इतना, और मैंगरोल और बाबरियावाड़ पे इस आरजी हुकूमत ने अटैक कर दिया। मैंगलोर जो हथिया लिए गए थे महाबत खान जी द्वारा, और इनको फ्री करा लिया गया आरजी हुकूमत द्वारा। मैंगरोल और बाबरियावाड़ को फ्री हो गए, ये फिर से कंट्रोल से हटा लिया गया। तो इस लार्ज स्केल वायलेंट एजिटेशन की वजह से पाकिस्तान से मदद सॉर्ट की गई, बट पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिली। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, क्योंकि बहुत स्केल एजिटेशन होती है, इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन म्यूट टू दिस पीपल्स प्रॉब्लम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला
to the Diwan and Nawab that you should obey the instructions of the people. You get a referendum or plebiscite conducted in Junagadh, and this referendum, this accession is illegal, because you have the Hindu majority of population, and the Hindu majority population should not join Pakistan at the first place, because Mountbatten ने भी मना कर दिया कि जूनागढ़ का जो एक्सेशन है ये लीगल है, क्योंकि the territory जूनागढ़ should be contiguous in land with Pakistan, but जूनागढ़ एक्चुअली सी से मिलता था, सी के द्वारा पाकिस्तान से जुड़ता था, लैंड के साथ कोई कंटिग्यूटी नहीं थी जूनागढ़ की। तो ये जो एक्सेशन था वो इलीगल माना गया बाय माउंटबेटन टू। तो जो ये एजिटेशन चल रहा था और ये जो फ्री करा लिए गए थे, इसको देखते हुए नवाब महाबत खान ने वापस अपनी सेना भेजी अटैक करने के लिए मांगरोल और बाबरियावाड़ को। तो इसकी वजह से जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी और वायलेंस हो गया था, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल वार की आशंका थी, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस भेज दी और बोला कि या तो आप इसको ख़त्म करें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, इसको दस्तावेजों को फाड़ दें और इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में शामिल हो जाए, प्लेबिसाइड करा लें और इंडिया में शामिल हो जाए, प्लेबिसाइड में जो भी आए, या फिर आप इस इंडिया में शामिल हो जाए, या फिर आप इस वायलेंस को ख़त्म करने के लिए जो भी कदम उठाना आप उठाएं, वरना इंडियन गवर्नमेंट विल इंटरफेयर। और इंडियन गवर्नमेंट अपनी फोर्सेस भेज दी और उसने क्या किया, जूनागढ़ के चारों तरफ फोर्सेस डिप्लॉय हो गई और वहाँ पे फूड की, ट्रेड की पूरी तरीके से सप्लाई, कम्युनिकेशन सप्लाई काट दी गई जूनागढ़ की, टू पुट प्रेशर ऑन महाबत खान टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपल। अब क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से, पाकिस्तान से कोई हेल्प मिली नहीं और इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी सप्लाई काट दी, और जो मैंगरोल और बाबरियावाड़ पे फोर्सेस भेजी थी वो ऑब्वियसली अटैक, महाबत खान वो फ्री हो गए थे, बट महाबत खान की जो फोर्सेस थी वो कुछ नहीं कर पाई मैंगरोल बाबरियावाड़ में। तो इस सबको देखते हुए महाबत खान फ्लीड फ्रॉम जूनागढ़ से भाग गए। इन नवंबर 1947, आई थिंक इन अक्टूबर 1947 वो भाग गए, 25 अक्टूबर अराउंड। और वो अपनी बेगमें भी छोड़ गए थे, कुछ इनकी कहानियाँ हैं, वो नृत्य में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, डांस, ये डॉग्स में बहुत इंटरेस्टेड थे, और अपनी बेगमें भी छोड़ गए थे, कुछ 9 बेगों में से 2 बेगमें छोड़ गए थे अपनी, मतलब इतना डर से भागे थे वो, क्योंकि जो आरजू हुकूमत थी उसने ये दोनों फ्री कर लिए थे और वो पूरा जूनागढ़ हथियाने के लिए चल पड़ी थी एक तरह से, और इंडियन फोर्सेस ने पूरी तरीके से काट दिया था कम्युनिकेशन, और कभी भी इंडिया का अटैक हो सकता था, तो भाग गए और शाहनवाज भुट्टो को अपनी छोड़ गए रूल पे। क्या आप रूल कीजिए। शाहनवाज भुट्टो ने नवंबर में वीपी मेनन से मुलाकात की, वीपी मेनन, और सॉरी नवंबर में शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से दोबारा लेटर लिख के मदद मांगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कैप्चर कर लिया है, पूरी तरह सप्लाई काट दी और हमारी मदद करें, लेकिन पाकिस्तान से कोई मदद नहीं मिली। इंस्टेड जो ये आरजू हुकूमत थी वो अटैक कर रही थी, किसको अटैक कर, मतलब पूरे इसको जूनागढ़ को हथियाने की कोशिश में थी। तो अब ये आरजू हुकूमत पूरा हथियाना लें जूनागढ़ को, तो शाहनवाज भुट्टो ने फाइनली इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी कि आप आएँ और पूरा रूल अपने हाथ में ले लें, वरना ये आरजू हुकूमत ही पूरा अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट फाइनली उनके दीवान के कहने से इंटरफेयर किया, एंड 9 नवंबर 1947 declared that it will be part of India, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया गवर्नमेंट का 9 नवंबर 1947 को। उन्होंने करीबन 4 नवंबर को लेटर लिखा था कि आप अपने हाथ में ले लें, शाहनवाज भुट्टो ने इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि आरजू हुकूमत पूरी तरीके से अपने हाथ में ले रही थी कंट्रोल को, तो उन्होंने 9 नवंबर को फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, और 9 नवंबर विल बी डिक्लेयर्ड एज द इंडिपेंडेंस डे फॉर जूनागढ़। एंड फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि क्योंकि हमने कंट्रोल तो अपने हाथ में ले लिया, बट एक बार गवर्नमेंट ये पब्लिक की भी राय ले ली जाए, तो
तो अब प्लेबिसाइड वॉज कंडक्टेड इन फरवरी 1948 और फाइनली प्लेबिसाइड में 99% लोगों ने हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान एंड फाइनली टू ज्वाइन इंडिया एंड फाइनली जूनागढ़ का ये जो 9 नवंबर में जो कंट्रोल अपने हाथ में लिया था, दैट हैज़ बीन स्टैम्प्ड, दैट हैज़ बीन पुट अपॉन द, इट इज सील्ड एंड स्टैम्प्ड कि भाई पब्लिक ने भी इसमें मोहर लगा दी है। एंड फाइनली जूनागढ़ गेट इंटीग्रेटेड इन इंडिया और एक्सेशन इन इंडिया ऑन 9 नवंबर 1947। प्लेबिसाइड में भी उस पर मोहर लग गई एंड 1956 में जूनागढ़ बिकम्स पार्ट ऑफ सौराष्ट्र का पार्ट हो गया। और जूनागढ़ पार्ट वॉज पार्ट ऑफ सौराष्ट्र एंड इन 1956 पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे का पार्ट हो गया सौराष्ट्र एंड इन 1960 बॉम्बे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनटू बॉम्बे एंड गुजरात। तो फाइनली सौराष्ट्र जो था वो गुजरात का पार्ट हो गया। तो जूनागढ़ बिकम्स पार्ट ऑफ सौराष्ट्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सौराष्ट्र का पार्ट हो गया एंड फाइनली 1956 बॉम्बे का सौराष्ट्र पार्ट हो गया। तो ये स्टोरी थी जूनागढ़ की। आपको क्या याद रखना है, समलदास गांधी जिन्होंने आरजी हुकूमत लगाई जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस मिली, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, क्योंकि इन्होंने बाबरे और बांगरोल का हथिया लिया था और पूरे जूनागढ़ को हथियाने की कोशिश में थे, जिससे महाबत खान डर गए थे। और महाबत खान इससे भी डरे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से सप्लाई काट दी थी जूनागढ़ की, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था या तो आप इंडिया ज्वाइन करें या इस वायलेंस को या इतने ये जो लार्ज स्केल एजिटेशन है इसको शांत करें। वो शांत करने की स्थिति में थे नहीं, क्योंकि पब्लिक पूरी तरह खिलाफ थी। तो उन्होंने बोला पब्लिक की बात माने, नहीं तो आप कंट्रोल छोड़ दें। तो फाइनली ये जो महाबत खान और शाहनवाज भुट्टो ने कंट्रोल सब अक्टूबर में इन्होंने छोड़ दिया, नवंबर में इन्होंने छोड़ दिया। आरजी हुकूमत आपको याद होगा, समलदास गांधी इनके लीडरशिप में इस आरजी हुकूमत ने काम किया, ठीक है। ये आपको मेनली याद रखना है। 9 नवंबर इज द इंडिपेंडेंस डे फॉर जूनागढ़, डे शुड बी रिमेंबर्ड, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी, तो ये आपको याद रखना चाहिए जूनागढ़ जो है उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सितंबर में साइन कर लिया था विद पाकिस्तान, इंस्पायर्ड कि इसने इंडिया ज्वाइन कर लिया उसके बावजूद। नाउ विल इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट हैदराबाद एंड लास्टली विल स्टडी अबाउट कश्मीर। तो हैदराबाद के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो काइंडली मेरे लेक्चर को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और वेट करें मेरे नेक्स्ट लेक्चर की। थैंक यू वेरी मच।